later on you can have interactive sort of thing और जो भी है आप लोग उसमें पढ़ सकेंगे, but at least from the exam, because you are here from the examination point of view, so I'll try to cover this presentation from the examination point of view. Is that all right? So how many of you have done awake cannot-me or have seen somebody is doing awake cannot-me? Raise your hand. No. Okay. Posterior fossa cannot-me? You have done. Okay. So how many of you have taken my lecture of awake cannot-me? Some part in the as a part of PSA. किसी ने लिया PSA में? अभी हमने ऑनलाइन लिया था, ये किसी ने भी नहीं लिया? क्यों नहीं? आप लोग ऑनलाइन PSA लेक्चर सीरीज में क्यों नहीं थे? Why you were not there? अच्छा, you people were not informed about that. Okay, I'm really surprised. So the idea of awake cannot-me. अच्छा, awake cannot-me है क्या? So what is awake cannot-me? Any idea? Patient would remain awake throughout the procedure, during some part of the procedure. What is your concept? Which part? ओके, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही. सो द आइडिया इज़ नॉट न्यू, इट हैज़ गॉट ह्यूज, मतलब इट्स एंशियंट परस्पेक्टिव, हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम द एंशियंट टाइम वेयर दे हैव यूज इट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, कंट्यूजन और फ्रैक्चर. सो एट दैट टाइम दे यूज टू सेड इट कि वो ईविल एयर निकाल दी तो पेशेंट सही हो जाएगा, बट द कॉन्सेप्ट वॉज दैट कि वो अवेक थी और उसमें वो उस लीजन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते थे एट दैट टाइम. सो बट वॉज सो बेसिक कॉन्सेप्ट अराइजेस सो व्हेन दे अंडरस्टूड द नीड ऑफ doing brain mapping. So what is brain mapping? We'll see. And for that the requirement was to have awake patient. सही है ना? So basic idea behind this thing is, कोई पूछे कि why we are doing awake cannot-me, so basic idea is, so we want to do brain mapping. What is brain mapping? We'll see in upcoming slide. So why patient needs to be awake? So that surgeon can precisely locate the lesion or separate this lesion from the normal part of the brain. So for precisely locating this lesion, so they have to do certain neurological test जो कि हम करते हैं depending upon the location of the lesion. So for those kind of the test, for locating that lesion or that particular area of the brain, they want awake patient. So most of the time the indication of awake cannot-me is supratentorial tumors, so lies above the tentorium plate. Most of them are gliomas and they usually lies somewhere over the area which is called allocant area. And what is allocant area? This is a specific area of the brain which control major neurological functions. कौन से टाइप के neurological functions होंगे वो? Motor. So supratentorial. We are talking about the cerebral cortex. Yes. So motor functions, sensory functions, speech. हमारा vision है, vernix area. So these areas, all these areas are called allocant area. So if you resect the tumor from here, it's very important that lesion should be precisely located, so that they can resect the lesion without causing minimal damage to all these kind of areas. Otherwise you'll resect the tumor and your patient would end up in having motor paralysis. So what's the point in doing the resection, है ना? अगर patient सारी ज़िंदगी paralyzed रहा by resecting that tumor, so it's not justified. So you have to see. So all these areas are called vernix area. So Broca's, vernix, the allocant area, Broca's, motor, sensory, and that's the main indication of doing awake cannot-me. So supratentorial cannot-me is, I have told you, allocant area as a part of epilepsy surgery. So if you have to precisely locate and resect the epileptic focus, so epilepsy surgery is being done, and that's the main indication of doing awake cannot-me. So we have done few cases also, at Aga Khan University Hospital for resecting of this epileptic focus. So as a part of deep brain stimulation, which is a treatment strategy for severe Parkinson disease, so awake cannot-me would be the part of this procedure also. And recently we have done some burr holes, EVD insertions by keeping the patients awake through the similar strategy. So the cannot-me, epilepsy, deep brain stimulation, all these are the indications of doing awake cannot-me. So in exam somebody may ask you that what are the indications, so these are the key indications of doing awake cannot-me. ठीक है, आप लोग कब तक है मुझे बताएं, जाना कब तक है? हम उस लिहाज से चलें, कोई मसला तो नहीं है टाइम का ना? बस ऐसी बड़ा मसला होता है कि हर वक्त ना लोग टाइम ख़त्म करते रहते हैं. सो ओके, मैं तो फ्री हूँ आज का दिन, बिल्कुल सही, मुझे कोई काम नहीं है. सो व्हाट इज़ अवेक cannot-me? सो अवेक cannot-me हुई क्या? सो यस, सो यू हैव टू नो, यू हैव नोन दैट यू हैव टू कीप योर पेशेंट अवेक. ठीक है, अब आप उन्हें अवेक कैसे रख रहे हैं? तो अवेक cannot-me की डेफिनेशन क्या हो गई? सो परफॉर्मिंग एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ cannot-me while keeping your patient awake, and that part would be the resection phase. तो जिस पार्ट पे आपने ट्यूमर को रिसेक्ट करना है, एटलीस्ट उस ड्यूरेशन में यू हैव टू कीप योर पेशेंट अवेक, एंड दैट्स द मेन डेफिनेशन ऑफ डूइंग अवेक cannot-me.
सही है. बिसाइड्स इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉर दिस रिसेक्शन यू हैव टू डू इंटरऑपरेटिव ब्रेन मैपिंग. हमने आपको देख लिया ब्रेन मैपिंग आपको बताएंगे क्या होती है. सो ब्रेन मैपिंग एक्चुअली लोकेट द लीजन, ठीक है ना, बाय डूइंग सर्टेन न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, बाय गिविंग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन. यू विल डू द ब्रेन मैपिंग कि ओके भाई इस एरिया में ना आपका ट्यूमर है, जैसे ये एरिया था, तो आपने मैपिंग की, आपने कहा ये एरिया जो है ना ये ट्यूमर वाला है. इससे आगे हम जाएंगे तो इसकी स्पीच इफेक्ट होना शुरू हो गई. पेशेंट नॉर्मल बोल रहा था, उन्होंने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी, लीजन क्रिएट किया लाइक बाय गिविंग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन. उन्होंने कहा अच्छा भाई गड़बड़ है, इस एरिया में नहीं जाना, इससे पीछे पीछे ट्यूमर निकाल लेना है. सिमिलरली दे हैव टेस्टेड मोटर कॉर्टेक्स इफ सम ग्लायोमा इज ओवर हेयर, दे हैव डन द टेस्टिंग. तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को टेस्ट करते रहते हैं. पेशेंट ने अपने हाथ हिला रहा है, जब आपने वहाँ लीजन के पास गए और आप मोटर कॉर्टेक्स पे आए, वो हाथ हिलाना बंद कर देगा. इट मीन्स दैट इज़ योर बाउंड्री. जी सर, ठीक है ना, आपने इससे आगे नहीं जाना. जैसे इमरान खान रेड लाइन है ना, तो आपने यहाँ से रेड लाइन पे नहीं जाना, ठीक है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक हो गया. तो ये दैट्स हाउ दे सेपरेट द लीजन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया एंड दैट इज कॉल्ड इंटरऑपरेटिव ब्रेन मैपिंग. बिसाइड्स इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर योर पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल एंड पेन फ्री. ऐसा नहीं है कि आप कोई पेशेंट के साथ ना कि पेशेंट हैव गॉट नो राइट्स और उस बेचारा कुछ नहीं, ही no say. It's not like that. It's your job to give painless and pain free, you know, your procedure, and your patient should be really comfortable. We know the positioning, application of Mayfield pin, and lot of stuff would be there. So that's why it's also important that you have to cover both of these aspects for performing this awake craniotomy. So brain mapping actually, as I've told you, it's a relationship between structure and function of the brain. That structure could be either normal tissue or the lesion. So usually done before the tumor resection. एंड कैसे करते हैं, बेसिकली दे यूजली डू द इंटरऑपरेटिव कॉर्टिकल स्टिमुलेशन बाय इलेक्ट्रोड एंड गिविंग थ्रू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस. सो दैट इज कॉल्ड इंटरऑपरेटिव ब्रेन मैपिंग थ्रू कॉर्टिकल स्टिमुलेशन विच इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड. सो अवेलेबल एनेस्थेटिक टेक्निक्स क्या हैं, अब ये कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं, अब आप लोग बताएं आपके जहन में क्या थॉट है. यू ऑल आर एनेस्थेटिस्ट, सो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर डूइंग अवेक कैनाटोमी. कैसे करेंगे, टीवा पे कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, इनहेलेशन, ठीक है, इनहेलेशनल से कर सकते हैं, और ओपियोइड से कर सकते हैं. तो किसी पर्टिकुलर टेक्निक, सो एनी पर्टिकुलर टेक्निक इज यू नो एडवांटेजियस ओवर अदर टेक्निक, या दूसरी टेक्निक के साइड इफेक्ट्स हैं किसी के. सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद टीवा, व्हाट एजेंट्स आर अवेलेबल फॉर द टीवा एट इन पाकिस्तान. प्रोपोफॉल, ओके, रेमीफेंटेनिल, ketamine, dexmedetomidine. Okay, we'll see what would be the best agent for us. So yes, available anesthetics are anesthetic techniques are variable, but yes, we know that whatever techniques you'll opt, you have to keep your patient awake during the resection phase. ऐसा ही हमें पता है, ठीक है ना, we know that. So it depends on the resources, experience of the team, confidence level, but overall there is no hard and fast rule that what techniques you will be using. So in whatever technique you will be using, you have to be comfortable and experienced with that technique. We'll see क्या techniques है. So in the craniotomy, for general craniotomy, there are 3 phases. Opening phase, when they cut the skin, subcutaneous tissue, remove the bone flap. Resection phase, when they'll start resecting the tumor, and then the closing phase, that would be the reversal of the procedure. So for the resection phase, as I've told you that so all of your patient needs to be awake, pain free, comfortable. ठीक हो गया. ओपनिंग फेज में इट रियली डिपेंड्स. अब लोग यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं. सो आइदर दे कैन गिव जनरल एनेस्थीसिया ओवर हेयर, ठीक है, आइदर दे कैन कीप देयर पेशेंट अवेक इन दिस फेज ऑल्सो, और प्रोवाइड अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ मैक during the pre-resection phase. ठीक हो गया. So either your patient would be having general anesthesia either with GA or endotracheal tube or with the LMA, or you can keep your patient awake with certain sort of medication which is also called MAC. So it really depends what technique you will be using over here. ठीक है, समझ आ रहा है सबको ये. तो it really depends on your level. Again, as I've told you, it's your comfort, availability, experience, lot of things would have got impact over here, that what strategy you'll be using. Yeah, this one. That's only inhalational. So it really depends. Not inhalational. So it could be either propofol, dexmedetomidine, midazolam, remifentanil, whatever would be the availability. ठीक है ना. So it doesn't have to be inhalational. So if inhalation should be with the general anesthesia and endotracheal tube or with the LMA. So if the MAC means sort of sedative agent where you will not require any intubation or LMA insertion. ठीक हो गया. So resection phase, your patient would remain awake throughout over here, and closing phase again depends कि आपने जब रिसेक्शन कर ली उसके बाद GA दोबारा दे दिया, या पेशेंट को आपने अवेक रखा थ्रू मैक थिंग. सो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस. सो व्हाट विल डू एट आगा खान यूनिवर्सिटी, तो हम क्या करते हैं, हमारे थ्रू आउट अवेक रहता है.
प्री प्रोसीजर पेशेंट अवेक होता है विद सर्टेन सॉर्ट ऑफ मैक, हम यूजली विल प्रोवाइड इट विद डेक्समेटोमिटिडीन. आवर पेशेंट विल रिमेन अवेक थ्रू द रिसेक्शन फेज एंड सेम गोज फॉर द पोस्ट रिसेक्शन फेज विच इज कॉल्ड अवेक थ्रू आउट अप्रोच. So our approach is awake throughout. So your patient would remain awake, the conscious sedation would remain there throughout the perioperative period in all three phases. ठीक हो गया, सही है. तो yes, with the start also, yes. आगे बताएंगे आपको, टेक्निक सारी समझाएंगे, फिक्र नहीं करें, ठीक है. सो हमारा पेशेंट थ्रू आउट अवेक रहता है विच इज़ द बेस्ट टेक्निक इन माय ओपिनियन. सो आई हैव डन फर्स्ट केस ऑफ अवेक इन पाकिस्तान इन 2016 इन पाकिस्तान. हमारा फर्स्ट अवेक केस वाज डन. सो अप टिल नाउ वी हैव डन आई थिंक मोर देन 200 केसेस. So we are pretty comfortable with this technique. So I'm not seeing any reason why this technique can't be opted. Even some surgeons which have got international experience came from England and say that there is a lot of mess with these techniques. आप सोचें मरीज़ को GA देना है, फिर उसको उठाना है और फिर दोबारा GA देना है. It's not an easy thing. It's a lot of mess around. So why can't we keep our patient comfortable? So that's the main thing. So and believe me, this is the main phase. You can easily manage this incision, this thing. You can easily manage with your MEC. So main problem is over here. सही है ना? तो it can easily be managed. तो we'll see how. So this was the data published in some neurosurgical journal. So these were the preferences of UK anesthetist. It's a bit old, 2012 में publish हुआ था, but just to give you an idea that 30% जो anesthetist हैं opt करते हैं कि वो patient को सुला दें और फिर resection में उठा दें और फिर सुला दें. So awake throughout approach जो है in 2012 again बहुत पुराने लोग भी use कर रहे थे, opted by the 30% of anesthetist. So डाटा थोड़ा सा चेंज होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है, बट वट एवर टेक्निक यू विल बी यूजिंग, सक्सेस किस पे डिपेंड होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इट्स थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर पेशेंट सिलेक्शन शुड बी अप्रोप्रिएट. ठीक है, सो बिसाइड्स, सो वंस यू हैव सेलेक्टेड द पेशेंट, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर पेशेंट साइकोलॉजिकली. ठीक है, एंड दैट्स द मेन जॉब ऑफ एनेस्थेटिस्ट. बिसाइड्स जो एडवांस सेटअप है, न्यूरोसर्जिकल सेटअप्स हैं, दो दे ऑल्सो गॉट द कंसल्टेशन फ्रॉम न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट. So neuropsychiatrist, neurophysiologist, anesthetist and surgeon has to be a part of this technique, but over here we don't have the provision of such kind of facilities even at AQ. So we know we are from the resource limited setup. So all the burden lies on the anesthetist. ठीक है ना. तो प्री ऑपरेटिव साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू बिल्ड योर रेपो विद द पेशेंट एंड क्लोज कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम्स इज रिक्वायर्ड. तो anesthetic goals क्या हैं? So you have to see the psychological preparation, you have to provide adequate analgesia. Intraoperatively we have to prevent nausea, vomiting and seizure, which are the common complications I'll tell you later on. And you have to facilitate with the intraoperative neurological monitoring and hemodynamic. You have to provide hemodynamic stability during the procedure. तो patient selection जो है ना, it's very important. So you have to see that which patients would be fulfilling the criteria. तो patient selection में so anesthesia related things, surgery related things. So most of the time these tumors needs to be a straightforward thing. Supratentorial glioma होने चाहिए, complex tumor नहीं होने चाहिए. So once you start having this case, just have a good discussion with your consultant, and your surgeon should be really experienced enough फॉर हैंडलिंग दीज काइंड ऑफ केसेस. ऐसा नहीं है कि एक सर्जन आए आपसे कहे कि मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ अंडर विदाउट सुपरविजन, सो इट्स नॉट गुड फॉर द पेशेंट, नॉट गुड फॉर यू. यू एंड अप इन हैविंग लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन. सब कहेंगे एनेस्थीसिया ने केस खराब कर दिया. सही है ना. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू सी दैट योर पेशेंट शुड बी रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट हैविंग लॉट ऑफ कोमॉर्ब्स. स्ट्रेट फॉरवर्ड रिसेक्शन होना चाहिए जो कि 1 से 2 घंटे में हो जाए, एंड पेशेंट शुड बी willing and motivated for this technique. He need to have good understanding that why you have to be awake during the procedure. So all these things needs to be considered before opting this case. So you shouldn't be starting this case with lot of complications on the patient side. Surgical resection would be complicated. तो ये वो ट्यूमर होते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर हम इनको GA भी दें तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको इंट्यूबेट करें, RTL लाइन के साथ कराएं, नो अदर थिंग. तो दिस सॉर्ट ऑफ ट्यूमर्स नीड्स टू बी डन एज अ पार्ट ऑफ अवेक प्रोसीजर. ठीक हो गया. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पेशेंट सिलेक्शन होनी चाहिए. साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन हो गई. द टेक्निक्स मैंने आपको बता दी. सो फॉर द मैक और फॉर कीपिंग योर पेशेंट अवेक थ्रू आउट द प्रोसीजर, लॉट ऑफ एजेंट्स आर अवेलेबल. सो योर स्केल ब्लॉक would be the mainstay of analgesia for any sort of awake anatomy. We'll see what scale block is. So regarding the sedative things, you have got lot of options: propofol, dexmedetomidine, and midazolam, remifentanil. So there are a lot of options. So we'll see which one is better than the other. So if you use propofol, midazolam, remifentanil, we know. So midazolam elimination half-life would be long.
and your patient would be deeply sedated. So whenever you'll start infusing your patient with midazolam, you'll know that you'll end up in having lot of sedation. That sedation would cause CO2 retention, and ultimately would leads to raised in ICP because of the cerebral vasodilatation and hyperperfusion. It's not good. Remifentanil again, so it's a very potent drug on one side. Besides, it's not available in Pakistan, but even if it's available, we'll know that it would cause lot of respiratory depression, and that depression would cause again rise in PCO2 level and raised in ICP level. It's not good. Problem with the midazolam, again you'll end up in, so you don't know. So though its therapeutic index is quite good, you can maintain the patient's ventilation, but at times when you stop it, कि your patient is not फौरन जवाब नहीं देगा, कुछ देर लेगा, तो थोड़ा सा sedate होता है, तो again it's not good. Again, if you go into the literature, you'll see that a lot of problems are also associated with the propofol in the awake anatomy scenario, I mean. So because of sedation, because of CO2 retention, hypoxemia is quite common at times if you increase the sedation. So all these agents can be usable, but they have got lot of risks, lot of problems associated with it, and they are the common factors which are associated with the failure of the technique. So that's why it's not our preference, and it's not the preference in the current literature also. So midazolam at times good for relieving short-term anxiety, like 1 to 2 milligrams आप दे सकते हैं, but infusion form में I would not recommend it. And at this I've told you that all these agents are associated with these problems: agitation, hypoxemia, hypercarbia, which is not good for any sort of neurosurgical case. You don't want hypoxia, you don't want hypercarbia for all of your neurosurgical patients, and we know why it is, because of the raise in intracranial pressure. It would cause rise in intracranial pressure. Okay? So respiratory depression common with these agents, desaturation, hyperventilation, hypercarbia, and because of increased sedation, aspiration might happen, and disorientation. All these problems are associated with the agents which I have mentioned over here. So this is the best agent, and nowadays it's quite in, and it's recommended for most of it's not only for the awake anatomy, but lot of procedures which can be done under TIVA. So we know. So dexmedetomidine क्या चीज़ है? सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट है. अवेलेबल है आप लोगों के यहाँ? ठीक है, इट्स अवेलेबल. सो इसके दो एडवांटेजेस क्या क्या हैं बड़े बड़े? क्या क्या थेरेप्यूटिक? sedation. So conscious depends on you. So if you are using it at 0.1, so ठीक है, तो it would give you a good sedation. सही है. It would not cause any respiratory depression or analgesia. ठीक है. It would give you a quality analgesia. बहुत अच्छा analgesia देगी. Yes, because of the centrally acting alpha 2 agonist, it would cause sympathetolysis, and that's the main advantage in ICU, where you want to keep your patient's heart rate in a borderline, in a good range. So these are the benefits because of the centrally acting alpha 2 action of this thing. ठीक है, एनाल्जेसिया प्रोवाइड करेगी, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं करेगी. बिसाइड द मेन एडवांटेज ऑफ इट, सो द स्लीप पाथवेज विच इट एक्टिवेट्स, सो एज कम्पेयर टू हमारे जो एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं जिसमें हमने मिडाजोलैम प्रोपोफॉल पढ़ा, वो गाबा एगोनिस्ट है, बट द स्लीप पाथवे विच डेक्समेटोमिटिडीन एक्टिवेट, इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव स्लीप इंडक्शन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा. तो ये क्या करती है, नॉर्मल स्लीप पाथवे को एक्टिवेट करती है. तो जब आपने इसको बंद करके पेशेंट को उठाते हैं ना, तो जैसे नॉर्मल सो रहा होता है ना, प्रोवाइडेड यू आर इन अ थेरेप्यूटिक रेंज, प्रोवाइडेड यू आर इन अ मतलब कॉन्शियस सेडेशन रेंज, हम ये नहीं कर रहे, एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वंस योर पेशेंट वुड वेक अप, सो इसके रिकवरी प्रोफाइल ऐसे ही होंगे जैसे आप सो के उठें. सो दैट्स यू वांट एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द रिसेक्शन फेज, के जब रिसेक्शन फेज हो रही है, आपका मरीज उठे तो आपकी बात सुनता रहे. ठीक है, तो दैट्स द मेन एडवांटेज, दैट इट वुड एक्टिवेट कोलैबोरेटिव स्लीप इंडक्शन पाथवे, विच मीन्स नॉर्मल स्लीप पाथवे को इट वुड एक्टिवेट, एंड योर पेशेंट्स रिकवरी प्रोफाइल वुड बी रियली गुड इन कंपैरिजन टू ऑल दोज एजेंट विच वी हैव डिस्कस, प्रोपोफॉल, मिडाजोलैम एंड रेमिफेंटेनिल. ठीक हो गया रिकवरी प्रोफाइल, तो ये इसका मेन एडवांटेजेस हो गया. ठीक है, सो अब ओवरऑल एडवांटेज क्या हुआ है? अब हमने क्रेनियोटमी के लिए हमने कर लिया पेशेंट को, और हमने इसको अवेक क्रेनियोटमी हमने देख ली, रिसेक्शन फेज में कर दिया, स्केल ब्लॉक लगा दिया, आपने अवेक थ्रू आउट अप्रोच कर दी. सो व्हाट एडवांटेजेस विल बी गिविंग टू आवर पेशेंट बाय कीपिंग देम अवेक? सो मोस्ट ऑफ द टाइम, सो दिस टेक्निक by doing cortical stimulation, by doing neurological monitoring, your surgeon would be able to do gross total resection. ठीक है ना, एंड एट टाइम्स अगर वो ग्रॉस टोटल रिसेक्शन नहीं भी कर सका, सो ही कैन डू मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन ऑफ द लीजन. एंड लीजन आई हैव टोल्ड यू मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ग्लायोमा. ठीक है ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट मिनिमाइजेस पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, और सर्वाइवल इंप्रूव करेगा. सर्वाइवल कैसे करेगा हम बताएंगे, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ वुड ऑल्सो भी इंप्रूव. ठीक है ना, तो वट स्टडी सेज फॉर लो ग्रेड ग्लायोमा, so if you do the maximum safe resection or do the gross total resection,
So it would prevent recurrence, tumor progression, anaplastic transformation, and ultimately would increase the survival of your patient. So it's the best thing which we can opt, which we can provide to our patients. ठीक है ना, तो फ़ायदा नज़र आ रहा है ना हमें. तो अगर आपने लो ग्रेड ग्लायोमा को कम निकाल दिया, आपने उसके रेमनेट्स छोड़ दिए, दैट वुड कन्वर्ट इनटू एनाप्लास्टिक, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एनाप्लास्टिक हो जाएगी, और जब व्हेन इट वुड रिकर विद द हाई ग्रेड, एंड दैट वुड कॉज लॉट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट नहीं होगा उसका. सो बाय कीपिंग योर पेशेंट अवेक यू विल प्रिवेंट रिकरेंस बिकॉज यू डू मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन. ठीक है ना, and you can prevent tumor progression, hence anaplastic transformation, and improve the survival of your patient. Contraindications क्या क्या होंगी अब अवेक टेक्निक की? तो सबसे पहले हमने देख लिया पेशेंट रिफ्यूज़ल. पेशेंट नहीं मान रहा, देयर इज़ नो पॉइंट कि यूल रश टू योर पेशेंट और यूल पुश योर पेशेंट टू ऑप्टिंग दैट टेक्निक. इट्स नॉट जस्टिफाइड. सो इफ़ योर पेशेंट डोंट वांट इट, तो हमें भी नहीं चाहिए. तो एनेस्थीसिया का एक जनरल रूल है, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है और आपके बचने का रास्ता है तो प्लीज़ बच जाएँ. डोंट एंटर इनटू द प्रॉब्लम. ठीक है, ये जनरल रूल है ऑफ प्रोवाइडिंग एनी एनेस्थेटिक केयर. ठीक है ना. इफ यू सी अ बिग प्रॉब्लम, टेक अ साइड. और अगर आपको साइड लेने का मौका मिल रहा है तो दैट्स द बेस्ट थिंग. सो डोंट एंटर इनटू द ट्रबल. तो इफ़ योर पेशेंट सेज आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद इट, डोंट प्रोसीड विद इट. ठीक है, कोई आपको मेडल नहीं देगा कि आपने उसको जागते में करा दिया और कोई कॉम्प्लिकेशन कर दी. सो देयर इज़ नो पॉइंट. सीवियर COPD एंड कफ. सो दोज पेशेंट्स हु हैव गॉट लॉट ऑफ कफ, कांट लाई डाउन, have got increased mucus production, so they are not a good candidate for keeping them awake. सही है ना. Mayfield spin लगी होंगी, सर्जन रिसेक्शन कर रहा होगा, will start having cough, so brain would bulge out. So it's not a good criteria for keeping these patients awake. Similarly, if your patient has got any sort of psychiatric disorder, anxiety, schizophrenia, so they are not a good candidate. Language barrier. It's very important that whatever the communication would be, so your patient should understand your communication. So language barrier, though it's a relative contraindication, but if you can have a interpreter or some person over there, so you can tackle down this problem. So we have done lot of cases, who can't speak Urdu, so but it's quite possible. But yes, you have got the provision of interpreter. Similarly, if your patient is so if your patient would not cooperate or can't lie still for any reason, because your patient needs to understand that this procedure has to be for a period of 2 to 3 hours. So they have to lie down for a period of 2 to 3 hours on the pins, on a position with the surgical thing. So it's very important that if they can't lie straight, so they can't be a good candidate of doing this awakeotomy. Similarly, dysphagia, any recall problem, any problems with the understanding, which are again the neurological symptoms, so these patients are not good for the awake thing. So patient refusal, severe COPD, backache, muscle aches, language barrier, and dysphagia, or any sort of anxiety or psychiatric problems would be the relative contraindication. So recall means the tumor related or some sort of neurological deficit. You have a good communication with your patient, but because of the neurological problem, because of the tumor thing, they are unable to recall the things. They have got some memory deficit or sort of things. So these are not a good candidate for things. So which is usually the symptoms of your frontal lobe lesion. हाँ, ये होगी तो because of the tumor, because of the जो primary disease process है, so it quite be the possibility, and most of the time it's associated with dysphagia. Means they are understanding what we are saying, but they are unable to give you the response to that thing. They are getting the thing, but they are unable to speak it out. So most of the time it's problems with the vernix and Broca's area. जी, मैं बताता हूँ. ठीक हो गया. तो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में दिस स्लाइड में मेरी चीज़ें आई नहीं, तो इसमें ओवर हेयर सो लॉट ऑफ टेक्निक्स विच यू कैन यूज to build up your patient psychologically. So the first thing you can give them the brochure, so which we usually do. So we have got the pre-designed brochure explaining all the procedural aspects of doing awakeotomy. So you can hand over that brochure to your patient so that they can come up with certain build up mind. So similarly, you can show them some videos and presentations, and a sort of theater visit also might be helpful. You'll take the patient and show them that this is a theater where you have to come and we have to do the procedure. So that's all things needs to be incorporated as a part of your psychological preparation, which is very important. So if your patient is not psychologically prepared, you'll end up in having failure. So what we are doing at AQ, so we are handing over them the awakeotomy brochure both in Urdu and English, so they can go through it and before coming to the anesthesia clinic. So once surgeon decide that they have to do this procedure as awake, so they'll give that brochure to the patients. Patients go through that brochure and come to the preoperative clinic after having a bit of description. So इस procedure शुरू कैसे होगा? So the mainstay of the analgesia is scalp block. सही है? तो procedure में है क्या? ब्रॉडली स्पीकिंग क्रियोटमी देखी हुई है सबने?
सबसे पहले क्या होगा, अभी जीए को भूल जाएं, क्रेनियोटमी वंस विल स्टार्ट विद द क्रेनियोटमी, सो दे हैव टू अप्लाई द मेफिल्ड पिन, then they have to cut the skin, subcutaneous tissue, periosteum, and they have to take the bone flap out, then the resection phase and the reversal. यही 3 स्टेप हैं जी। बोले मैं बताता हूँ, पोजीशन का भी बताता हूँ। 3 स्टेप्स क्रेनियोटमी के आपको पता है। तो पेन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? सबसे पहले स्कैल्प पे हो रहा है। दूसरे नंबर पे पेन कहाँ हो रहा है? स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू पे होगा, और बोन आपकी पेन फ्री है। तीसरे नंबर पे पेन कहाँ हो रहा है? ड्यूरा। उसके बाद ब्रेन मैटर जो है ना पेनलेस नहीं है। इसी तरह जब रिवर्सल होगा, पेन सबसे पहले ड्यूरा पे होगा, फिर स्किन पे आएगा, बोन लगा देंगे, तो जब क्लोजिंग फेज आएगा वो यही है। ठीक है, 3 स्टेप से पेन है। तो सबसे पहले स्टेप पे मेन स्टेज इज स्कैल्प ब्लॉक। सो स्कैल्प ब्लॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन कहीं पढ़ा, कभी देखा, कभी सुना स्कैल्प ब्लॉक? ठीक है, सो बेसिकली इट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक टुवर्ड्स द स्कैल्प सप्लाई हमारी जो है। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स क्वालिटी एनाल्जेसिया, बिलीव मी। तो विल डू द स्कैल्प ब्लॉक फॉर ऑल ऑफ माई सुप्राटेंटोरियल क्रेनियोटमीज, इवन इफ दे आर नॉट गोइंग थ्रू द वेक थिंग, सो इवन फॉर द जनरल एनेस्थीसिया आई विल प्रोवाइड देम विद द स्कैल्प ब्लॉक। सो विदाउट स्कैल्प ब्लॉक यू विल अवेयर कि जब पिन लगती है कितना पेन होता है ना पेशेंट को, बट यू नो वंस यू put the scalp block, you'll see how magical it is. So and most of my patient would not feel any pain throughout the perioperative period. So मैं अपने सब patient को हम लोग visit करते हैं post operatively. So once you'll provide them with the scalp block, so I'm talking about patients having general anesthesia, not for the, तो इसमें तो है ही अच्छा definitely. So they'll not feel any pain throughout the post operative period. हाँ, फिर भी लगाते हैं तो बहुत फ़ायदा है इसका। ठीक है, सो इट प्रोवाइड क्वालिटी एनाल्जेसिया थ्रू आउट द पेरीऑपरेटिव पीरियड। ठीक है ना, और एनाटमिकल कैसे हम इंस्टीट्यूट करते हैं? थ्रू एनाटमिकल लैंडमार्क टेक्निक। इट्स अ सिंपली अ रिंग ब्लॉक ऑफ द स्कल। ठीक है, इट्स अ रिंग ब्लॉक ऑफ द स्कल। अब वो कैसे? आपकी नर्व्स हैं, ठीक है, सो एंटीरियर स्कैल्प में, पोस्टीरियर स्कैल्प में। सो द नर्व सप्लाई ऑफ एंटीरियर स्कैल्प इज सुप्राऑर्बिटल, सुप्राट्रॉक्लियर, लेटरल स्कैल्प में ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, ऑरिकुलो टेम्पोरल, एंड जो आपकी पोस्टीरियर स्कैल्प है और दैट वुड बी कवर्ड थ्रू ग्रेटर ऑसिपिटल, लेसर ऑसिपिटल एंड ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व ब्लॉक। ठीक है, तो आपको जितनी भी नर्व्स हैं इन सबको आपने रिंग ब्लॉक की तरह, आपने जिसे हम रिंग लगाते हैं ना अपने बिग टो पे, तो उस रिंग ब्लॉक की तरह, सॉरी एंकल पे, तो आपने इनको इन्फिल्ट्रेट कर देना है विद द लोकल एनेस्थेटिक। और यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज 2 पॉइंट्स वेयर द आर्टरीज आर देयर, सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क ऑफ गेटिंग इंजेक्टिंग योर लोकल एनेस्थेटिक इनटू द आर्टरी, सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल इन टर्म्स ऑफ एस्पिरेशन एंड नॉट गिविंग योर इंजेक्टेड इनटू द आर्टरी। ठीक है, तो हमने नर्व्स देख ली, सुप्राऑर्बिटल, ट्रॉक्लियर, लेटरल स्कैल्प की ज़ाइगोमेटिको, ऑरिकुलो टेम्पोरल, ग्रेटर ऑसिपिटल, लेसर ऑसिपिटल, और आपकी यहाँ पे आ जाती है ग्रेटर ऑरिकुलर। लोकल एनेस्थेटिक, सो इट्स योर चॉइस। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी वांट लॉन्गर एक्टिंग एजेंट, जिसमें हमारे पास ब्यूपीविकेन है, रोपीविकेन है। सो इट हैज़ टू बी यूज इन अ 0.5%, सो प्योर यूज़ करना है। सो द रोपीविकेन इज़ लॉजिकल बिकॉज ऑफ द लेस कार्डियोटॉक्सिक पोटेंशियल। ठीक है ना, तो आर प्रेफरेंस इज़ टू यूज़ रोपीविकेन विद एड्रेनालिन। सही है ना, तो एपी इसमें मिलाते हैं आप, क्योंकि यू डोंट वांट द स्कैल्प का जो एरिया जिसमें आप स्कैल्प ब्लॉक लगा रहे हैं, इट्स अ हाईली वेस्कुलर एरिया। सो आफ्टर 20 मिनट्स योर प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ एनी इंजेक्टेड लोकल एनेस्थेटिक वुड बी रियली हाई। तो आपने देखा होगा ना स्कैल्प कितना ब्लीड करता है, तो इट्स अ हाईली वेस्कुलर एरिया। सो दैट्स वाई यू हैव टू ऐड एपिनेफ्रिन इन इट to prevent the spillage into the systemic circulation to gain some time. So the dose हम ये यूज़ करते हैं तकरीबन 3 mg per kg, turns out to be somewhere between 30 to 40 ml of pure ropivacaine। तो ये हमारे स्कैल्प ब्लॉक में होता है। ठीक है, तो ये आपका ये हमारा टेक्निक है। इसमें आपने लोकल एनेस्थेटिक जो है ना, आई विल गिव यू द लिंक ऑफ माई गूगल ड्राइव वेयर यू कैन गो थ्रू ऑल दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज। वो हैं, वो मुझसे किसी को मैं ईमेल कर दूंगा तो पढ़ लीजिएगा। न्यूरो की बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। सो तो हमने एक अपना फिक्स प्रोटोकॉल बनाया है कि आपने इस नर्व को ऐसे ऐसे ब्लॉक करना है, तो दैट्स हाउ इट शुड बी। एडिटिव्स क्या क्या ऐड कर सकते हैं टू एनी लोकल एनेस्थेटिक रेजिम? एड्रेनलिन मैंने आपको बता दिया द रीज़न ऑफ इट। बिसाइड्स यू कैन ऐड डेक्सामेथासोन, सो विच इंक्रीज द क्वालिटी एंड द ड्यूरेशन, द क्वालिटी ऑफ योर ब्लॉक एंड इनहेंस द ड्यूरेशन ऑफ योर ब्लॉक। सो डेक्सामेथासोन हम यूजली एंटर करते हैं। तो ओवरऑल स्कैल्प ब्लॉक इज़ प्रीटी सेफ, वेरी लो कॉम्प्लिकेशन रेट। I've never seen any, so up till now, so I've never seen any sort of local anesthesia toxicity. The only complication which is quite possible and which is temporary, so facial nerve paresis which occurs with the auriculotemporal nerve block। ठीक है ना, तो यूजली वो जो नया लगाना शुरू करते हैं ना लोग, तो वो उनके साथ ज़्यादा होता है, बट लेटर ऑन तो यू हैव टू बी रियली अबव द ट्राइगस लेवल, सो दिस कॉम्प्लिकेशन वुड बी वेरी वेरी लो। So these are the some complications of doing scalp block. So from the examination point of view, so until now you have to be sure that what are the indications of doing awake craniotomy, what strategies or what anesthetic techniques we can opt for doing awake craniotomy,
what are the contraindications, how you can prepare your patient psychologically, so what is scalp block and the nerve supplying the scalp block, ये हमने देखा, ये काफ़ी आता है, और द कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्केल ब्लॉक अब तक हमने आपको ये बता दिया। ठीक है, आगे चलें, कुछ पूछ रहे हैं? या वी कैन गो थ्रू इट बिकॉज यू नो आई डिडंट कवर इट, बट यस, सो द लैंडमार्क्स ओवर हेयर, so for supraorbital and supratrochlear, so over here, so supraorbital ridge होती है हमारी on the medial side of our eye, ठीक है, so on over here you have to apply for the supraorbital and medial to that would be supratrochlear. so for the injection of zygomaticotemporal, आपने जो lateral side of the हमारी eye है, medial, ये जो lateral edge है of the eyelid, आपने यहाँ infiltrate करना है, ठीक है। for auriculotemporal nerve block, so you have to be over here above the tragus and along the hair line, जो हमारी hair line और tragus का जो meeting point है, over here you have to be here. Besides for this block, इसमें क्या करना है आपने, एक inion, so you are familiar with the inion, the most central part of your occiput, so you have to draw a line from the inion towards the mastoid, ठीक है, ये ऐसे लाइन आ गई, ठीक है। इसको डिवाइड कर दें मिडिल 1/3, मिडिल 1/3 में तो आपका जो सबसे लेटरल होगा मिडिल 1/3, उसमें ग्रेटर ऑसिपिटल है, फिर लेसर ऑसिपिटल और ग्रेटर ऑरिकुलर है। तो आई विल गिव यू माय ईमेल, गूगल लिंक होगा मेरा, उसमें चली जाएंगी, ऑल रिसोर्सेज वुड बी देयर, सो यू कैन हैव अ डिटेल यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ब्लॉक, सो आई विल गिव यू माय गूगल लिंक, डोंट वरी, ठीक है। सो सुपरा ऑर्बिटल रेज, द लेटरल साइड ऑफ द आई हमारा कैंथर हो गया, सो ट्रैगस अलॉन्ग द हेयर लाइन, और यहाँ पे आपने इनियन से मेस्टॉइड पे लाइन जो ड्रॉ करेगी, मीडियल 1/3 में आपका आ जाएगा ग्रेटर ऑसिपिटल, मिडिल 1/3 में लेसर ऑसिपिटल, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्रेटर ऑरिकुलर, ठीक है। वो यू कैन हैव दैट इमेज, यू नो, डोंट वरी। सो ये मेरा अपना प्रोटोकॉल बना हुआ है, तो इसमें ये होता है कि आप फिक्स कंसनट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग दे देते हैं, प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है और सब लोग एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक फॉलो कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बता दी। तो ओवरऑल हमारी एवेक एनाटॉमी की टेक्निक है, इट्स प्रीटी सेफ एंड इट्स वेल टॉलरेटेड बाय द पेशेंट, ठीक है ना। बट कुछ पॉइंट्स पे अब हमने आपको बता दिया, स्किन खुल गई, आपकी स्किन को स्केल ब्लॉक में कवर कर दिया। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें डिस्कम्फर्ट होता है, जैसे कि आपने ट्यूमर रिसेक्ट हो रही हो, स्ट्रेच हो रही हो, या ड्यूरा ओपन हो रही हो, तो उसमें फिर क्या करते हैं हम सर्जन से कम्युनिकेट करते हैं, सर्जन लोकल एनेस्थेटिक की जो पैटी होती है सोक करके वो आपको डायरेक्ट ड्यूरा पे रख देते हैं, दैट वुड प्रोवाइड एनाल्जेसिया ओवर देयर, ठीक है। और ये हो गया। तो वो डिफरेंट स्टडीज़ हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंस ये बताई गई है कि इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल विद योर टेक्निक, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर योर पेशेंट, यू नो, साइकोलॉजिकली, प्री ऑपरेटिवली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर प्रिपरेशन शुड बी, यू नो, एडिक्वेट. So the success of this technique would lies over here, that you have to prepare your patient to see whether your patient is cooperative, your patient would be willingness. So you have to work over here if you want to be really successful with your technique. Similarly, this is a data of 27 US data of 27 year. So they have studied different modalities. So they came up with the conclusion that it's safe, very low complication rate है, low failure rate है, और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है वो हम बता देते हैं. सो दीज आर पर्टिकुलरली, यू नो, फ्यू कॉम्प्लिकेशंस. रिस्पिरेटरी डिप्रेशन 18%, which is more common with agents which I have told you, propofol, remifentanil, but not with the dexmedetomidine. Similarly, loss of patient cooperation is again linked with these agents. तो वो एजेंट जो आपने यूज़ किए, जिनको आपने बंद किया, पेशेंट एजिटेट हो गए, प्रॉब्लम हो गई, तो लॉस ऑफ कॉपरेशन हो गया और आपको भाग हबड़ दबड़ में जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ गया, विच इज़ नॉट गुड. सही है. वॉमिटिंग इज़ कॉमन, 4 to 8% में होती है. सीजर्स अगेन 11% में होते हैं, और एयर एम्बोलिज्म वेरी वेरी रेयर. तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो हमारे पास हैं, दे आर वॉमिटिंग, सीजर्स एंड सम सॉर्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट. इवन विद द मॉनिटरिंग न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स कैन अकर, ठीक है, बट दे कैन बी पिक्ड अप मच अर्लियर एज कम्पेयर टू जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है. और इंसिडेंस ऑफ कन्वर्जन टू जनरल एनेस्थीसिया वेरी वेरी लो, 2% पेशेंट. हमारे यहाँ 0% है. मेरे ख्याल से 300 में से कोई एक मरीज़ ऐसा होगा जिसको हमने स्टार्ट में कन्वर्ट कर दिया था विदाउट स्टार्टिंग द सर्जरी. सो ओवरऑल भी लिटरेचर में इंसिडेंस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू जनरल एनेस्थीसिया 2% है. बट और रीज़न क्या आते हैं इनके? पेशेंट, पुअर पेशेंट प्रिपरेशन. अगर आपने पेशेंट सिलेक्शन सही नहीं की ना, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वुड कम टू यू विद द एक्सपीरियंस, ठीक है ना. मुझे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया, हम देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड है. और आपकी टीम ऐसी बिल्ड होनी चाहिए कि वेयर सर्जन शुड बी लिसनिंग टू यू. इफ़ यू से कि आई एम नॉट कंफर्टेबल बाई डूइंग अवेक, सो ही शुड बी, यू नो, कन्विंस्ड कि ओके इफ़ यू आर सेइंग, तो दैट्स हाउ इट शुड बी. अदरवाइज देयर इज नथिंग लाइक पुशिंग यू टुवर्ड्स दैट टेक्निक. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, डोंट स्टार्ट द केस. तो एनेस्थीसिया की बेस्ट रेजीम क्या है? जनरल एनेस्थीसिया. ऐसा ही है ना. तो वट एवर टेक्निक यू आर यूजिंग, वट एवर ब्लॉक यू आर यूजिंग, जस्ट रिमेंबर दैट यू आर एक्सपर्ट इन प्रोवाइडिंग जनरल एनेस्थीसिया. बस ये बात याद रखें. सही है ना.
तो आपका ब्लॉग अच्छा भी काम कर रहा है तो जनरल एनेस्थीसिया रेस्क्यू अगर नहीं भी काम कर रहा ना, अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लॉग कोई भी ब्लॉग यूज़ करते हैं, रिमेंबर जनरल एनेस्थीसिया जो है ना वो बेस्ट यू टर्न है फॉर द एनेस्थेटिक, है ना ऐसे ही हाँ हाँ, सर्जन को पता भी नहीं चलना चाहिए, जनरल एनेस्थीसिया चुप करके काम हो जाता है, ठीक है। तो जनरल एनेस्थीसिया तो इज मस्ट. So whenever you'll prepare your patient for any sort of regional technique, just prepare them for general anesthesia also, ठीक है ना, we are expert in it. So overall incidence of seizure is 7.1%, ठीक है। ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ये अक्सर मैंने देखा है, ये सवाल भी कुछ आता है कि इंट्राऑपरेटिव सीजर कैसे कंट्रोल करने हैं अब अगर अवेक में हो गया, तो मोस्टली अकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉर्टिकल स्टिमुलेशन. कॉर्टिकल स्टिमुलेशन कौन सा टाइम था? अवेक था मरीज, कैसे कर रहे थे कॉर्टिकल स्टिमुलेशन? नहीं, कर कैसे रहे थे? सो हाउ दे by providing certain electrical stimulus, and that's the time where your patient, तो आप सोचें किसी भी ब्रेन मैटर को हम कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दे रहे हैं, सो यू आर क्रिएटिंग अ लीजन आर्टिफिशियली, सो दैट कैन एंड अप इन हैविंग सीजर, तो वो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस करेगी एंड दैट कैन कॉज सीजर इंट्राऑपरेटिवली, ठीक है, और ड्यूरिंग द रिसेक्शन फिर, बट कॉमनली दे अकर एट द टाइम ऑफ कॉर्टिकल स्टिमुलेशन, यही हमारी भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और किन में कॉमन होगा? जो यंग पेशेंट्स होंगे जिनको हिस्ट्री ऑफ सीजर होगी. अब ट्रीट कैसे करना है इनको, सीजर को ट्रीट करने के क्या क्या ऑप्शन है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिडाइजोलैम, इंट्राऑपरेटिवली आपने में कोई भी बारबिचुरेट्स देना है जिसमें मिडाइजोलैम आ गया, दूसरी तरफ थायोपेंटोन है, और क्या अवेलेबिलिटी है, या फेनिटॉइन दे दी, तो अब इमीडिएट कंट्रोल करना है. फेनिटॉइन वुड टेक सम टाइम, वेलप्रोइड टेक सम टाइम, इफ थायोपेंटोन देंगे you'll end up in having sedated पेशेंट जिसको इंट्यूबेट करना पड़ेगा. मिडाइजोलैम यू कैन यूज़. तो अब ये जो सीजर्स ये वाले होते हैं ना, दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड सीजर, तो यू हैव टू बी रियली जुडिशियस इन टर्म ऑफ यूजिंग मिडाइजोलैम. इफ इट हैज़ टू बी यूज, यू हैव टू बी यूज इन इंक्रीमेंट्स. अब ऐसा नहीं है कि आपने ना एकदम 5 दे दी, तो हमारे ER में बहुत सारे मरीज आते हैं सीजर के साथ, डायरेक्ट 10 mg मिडा दे दी, 5 mg दे दी, उनको इंट्यूबेट करके ICU में ले. भाई तुम 1 mg दे देते, 2 दे देते, बच जाता पेशेंट. तो सेम गोज फॉर द इंट्राऑपरेटिव फेज. इफ यू एंड अप इन हैविंग सीजर, सो जस्ट गिव एन इंक्रीमेंट्स, 1 mg दे दिया, 2 mg दे दिया, so that you'll not end up in having sedated patient where you have to intubate the patient on the pins you are doing awake. Besides, अब अवेक नॉट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको सीजर्स हो गए, हमारे जब भी सीजर्स होते हैं, सीजर एक्टिविटी बढ़ती है, वी नो हमारी CMRO2 बढ़ जाती है और मेटाबॉलिक कंजम्पशन बढ़ जाती है. सो वंस यू इरिगेट योर ब्रेन डायरेक्टली विद द आइस कोल्ड सलाइन, दैट सीजर वुड बी वेयर ऑफ. So that's the main treatment of intraoperative seizures in patients having awakenotmy or patients having epilepsy surgery. तो अगर सीजर्स होते हैं तो हमारे पास एक ट्रे होती है सर्जन के पास, उसमें ice cold saline would be there, so they'll directly insufflate that ice cold saline over the brain matter, so it would diminish seizures as soon as you'll start insufflating it. तो दैट्स द बेस्ट ट्रीटमेंट. तो वो क्या करते हैं, CMRO2 को बिल्कुल जीरो कर देते हैं, सो योर ब्रेन वुड टर्न इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन would have zero cortical stimulation, so that would end up your seizure. So it's the most efficacious intraoperative treatment of seizure in patients having awakenotmy. कोल्ड से आइस कोल्ड होती है, बिल्कुल आइस कोल्ड होती है, जैसे हमारे वो चिल्ड हम अभी थे ना उस तरह का, ठीक हो गया. तो एंड इट्स प्रोविजन नीड्स टू बी देयर वेन एवर यू आर डूइंग अवेकेनॉटमी. तो हम ये देखते हैं कि ये वो पेशेंट जो हमारे सीजर इसमें, तो विल मेक श्योर दैट्स इट्स प्रोविजन इज देयर इन द थिएटर, तो इट्स अवेलेबल होती है. और अगर आपने एंटी कन्वर्जेंट्स यूज़ करने, तो जैसे आई टोल्ड यू दैट मिडाइजोलैम इन इंक्रीमेंट्स, नॉट लाइक कि आपने प्रोपोफॉल भी दे दी और वो भी दे दी, तो इंक्रीमेंट्स में यूज़ करने. बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके पास बहुत एक सेफ पाथवे ऑफ अबॉर्टिंग सीजर्स देन एंड देयर, ठीक है. इंट्राऑपरेटिवली आई टोल्ड यू दीज आर द सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस. सो ये अगेन हमारी स्टडी सीरीज थी. तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आर क्वाइट कॉमन, यूल सी 14%, 38%, फिर आपने न्यू न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट 15%. सो इन डिफरेंट स्टडीज यू सी देयर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स. सो व्हाई? सो दो द कॉम्प्लिकेशंस आर देयर, दे विल पिक्ड अप मच अर्लियर. सो जब ये रिसेक्ट कर रहे हैं, इन्होंने देखा कि पेशेंट का हाथ मूव होना शुरू बंद हो गया, तो इन जनरल एनेस्थीसिया दे विल कम टू नो वंस द पेशेंट वुड वेक अप in the recovery room or in the ward. But over here they'll pick up the neurological, any sort of neurological deficit much earlier. और फिर क्या होता है कि ये these sort of neurological deficit are usually short lived because they have picked up earlier, they have stopped doing the resection, and that's why they are short lived, so they can manage up much better as compared to those deficits which have occurred under general anesthesia. ठीक है, you're getting my point. तो ये वो पॉइंट था जब डेफिसिट होना शुरू हुआ, दे हैव पिक्ड इट अप कि ओके विल स्टॉप द सर्जरी. वो बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है, दिल स्टार्ट डूइंग द केस, स्टार्ट डूइंग द रिसेक्शन और फ़ौरन ही उनको डेफिसिट आने लग जाता है. सो दे अबंडन द केस कि देयर इज़ नो पॉइंट, वी हैव टू डू द बायोप्सी एंड सेंड द पेशेंट फॉर द कीमोथेरेपी और एनी अदर मोडेलिटी वुड बी अवेलेबल. अदरवाइज विल बी having a patient who can't move, who can't speak, there is no point. So lot of decisions can be taken on the basis of that by keeping your patient awake. जब
नहीं करते, फिर नहीं करते, ठीक है। इट रियली डिपेंड्स, फिर डी बल्क कर देंगे बस थोड़ा सा, ठीक है ना, विच इज़ अ रेयर पॉसिबिलिटी, बट येस दे विल नॉट डू द रिसेक्शन इन दैट केस। सही है ना, देयर इज नो पॉइंट ना, ट्यूमर भी है और फिर इस पर भी डिपेंड करता है कि ट्यूमर की टाइप क्या है। फॉर से उन्होंने दे हैव टेकन द बायोप्सी जो हम इंट्राऑपरेटिव फ्रोजन भेजते हैं, इफ़ इट्स अ हाई ग्रेड ट्यूमर एंड द वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, व्हाट इज द पॉइंट। सो जो फिर सर्वाइवल है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जितनी भी है फिर उसको उसी तरह बेहतर कर लें, बजाय इसके कि पैरालिसिस करके छोड़ दें, ठीक है ना। सो ओवरऑल मोर्टेलिटी वेरी वेरी लो इन द लिटरेचर, ठीक हो गया। रिकवरी तो बिकॉज ऑफ ऑल दोज टेक्निक्स रिकवरी प्रोफाइल बेटर होंगे इन कंपैरिजन टू जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है ना। वी नो द रीजन बिहाइंड, नॉजिया वॉमिटिंग वुड बी रियली लो, लेस पोस्ट ऑपरेटिव पेन, योर पेशेंट वुड बी डिस्चार्ज अर्लियर, और इसी तरह आपका स्पेशल केयर का एक दिन का स्टे बच जाता है और एक दिन का हॉस्पिटल का स्टे बच जाता है, एंड इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट, ठीक है। इसमें हम बाद में चलते हैं, यहाँ तक हमारे कोई क्वेश्चन हो जाए तो फिर हम अगला पार्ट शुरू करते हैं। सारी सर्जरी हो जाती है, तो अगर देना पड़े कभी कभी एनाल्जेसिया देना पड़े तो मॉर्फिन का इंक्रीमेंट्स 1 mg 2 mg मॉर्फिन कैन बी गिवन, विच इज़ वेरी रेयरली रिक्वायर्ड। तो इन थेराप्यूटिक डोजेस तो वो यूजली इफ़ यू कीप योर डोज, तो आप लोग कैसे चलाते हैं, किस रेट पे चलाते हैं? ठीक, माइक्स पर केजी पर आर पे चलाते हैं। सो वंस यू स्टार्ट, तो उसमें रिकमेंडेशन इज दैट फॉर इनिशियल 30 मिनट्स यू हैव टू गिव अ बोलस ऑफ 0.5 माइक्स पर केजी पर। सो आई प्रीफर नॉट टू गिव एनी बोलस, जस्ट स्टार्ट दिस थिंग, वंस योर पेशेंट एंटर यू पुट मॉनिटरिंग और स्टार्ट कर दें 0.1 0.2 पे। सो इन दोज काइंड ऑफ रेंजेस, in the conscious sedation ranges which would be somewhere around 0.1 0.2 mics per kg per hour, you will not get those kind of responses like bradycardia, hypertension. If you increase up your doses you can get that response, and then that can easily be treated with atropine or sort of thing. So मैंने कभी प्रॉब्लम नहीं देखी, और इवन विद द phenylephrine अगर आपने बोलस देना है तो yes, so जो थेराप्यूटिक रेंज हम होते हैं जिसमें 0.1 to 0.2 mics per kg per hour, so those kind of symptoms would not interfere. तो यूजली दो सिम्टम्स अगर एट हाई डोजेज, और इवन एट हाई डोजेज इट कैन इजीली बी मैनेज विद एट्रोपिन। आप एट्रोपिन 0.4 देते हैं, ये सारा हार्ट एट से हो जाता है, कोई मसला नहीं होता, नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। एट्रोपिन से अच्छी कोई दवाई नहीं है, मैं बताऊँ आपको। एट्रोपिन 0.2 0.4 दें, 0.2 पे काम नहीं करती, 0.4 पे नहीं। आप इंक्रीमेंट्स 0.2 दें, 0.2 दें, 0.2 दें, मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स। हाँ, वो कहते हैं कि लो डोजेज पे रेजिस्टेंट होती है, बट रेजिस्टेंट विद डेक्समेटोबिटिन यू आर सेइंग, आई हैव नेवर सीन, बहुत अच्छा काम करती है। मुझे तो कभी ग्लाइकोपाइरोलेट काम नहीं करती। ग्लाइकोपाइरोलेट इन माय ओपिनियन मतलब ऐसे ही है, डिले करती है, बट नॉट फॉर दोज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज विच यू वांट टू गेट। सो मैंने ये देखा कि फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ब्रेडिकार्डिया लाइक पेशेंट्स और बीटा ब्लॉकर और AC इनहिबिटर हैविंग हाइपोटेंशन ब्रेडिकार्डिया इंट्राऑपरेटिवली, सो मोस्ट ऑफ द टाइम योर एट्रोपिन वुड वर्क्स वेल। बट येस, फॉर द एट्रोपिन इट्स नॉट लाइक यू विल गिव 1 mg स्ट्रेट अवे, इट हैज़ टू बी इन इंक्रीमेंट्स, लाइक 0.2 देख के रिस्पॉन्स देख लिया, फिर 0.2 देख के रख दिया। तो समवेयर बिटवीन 0.4 to 0.6 इट वर्क्स वेल इन माई ओपिनियन। हर एक का अपना अपना, आप लोग भी डेली यूज़ करते होंगे, इट वर्क्स वेल। Always give increments of 0.2. Yeah, definitely, because to cause of bradycardia. most of the time the cause of anesthetic cause of bradycardia is like either your anesthetic depth or preoperative agent. So from the anesthesia point of view I am saying, so I'll prefer to give atropine, yes. इन इंक्रीमेंट डेफिनेटली वी डोंट वांट। आपने एनेस्थीसिया में दवाई दे दी, उसके बाद तो आपके हाथ में खत्म, आपने दे दी, तो इट हैज़ टू बी लॉजिकल इन इंक्रीमेंट्स। तो कोई भी एनेस्थीसिया में चीज़ें स्लो दें और उसका रिस्पॉन्स देख लें फिर दें। तो इट्स नॉट लाइक दैट वन रेजिम फॉर एवरीवन, इट्स नॉट लाइक। तो मेरा हमेशा मैं जो भी एनेस्थीसिया में दवाई देता हूँ इन इंक्रीमेंट्स में देता हूँ, ताकि मेरे पास कंट्रोल हो कि आप सेफ रेंज में रहें। Yes, it's a good question. So yes, so clinical monitors routine is a specified monitoring. Oxygenation आपने देख ली, तो आपने हडसन मास्क रखा, so you can get entitles you to through that hudson mask. So the logical again, so you can have an idea that your patient is not deeply sedated, which we don't want. So हम करते भी नहीं है, but yes, so आपको ventilation पता चलती रहती है। NIBP most of the time if it's a straightforward surgical resection, non-invasive blood pressure monitoring, and आपका अपने pulse तो definitely ECG देखनी है आपने। Besides depth of anesthesia will also monitor. सो थ्रू द बिस मॉनिटरिंग, तो बाई स्पेक्ट्रल आपका जो क्या कहते हैं इंडेक्स है, तो बाई स्पेक्ट्रल मॉनिटरिंग से बिस से हम कर लेते हैं। तो उसमें उसकी लॉजिक वही है, यू वांट टू गिव कॉन्शियस सेडेशन, एंड फॉर दैट कॉन्शियस सेडेशन यू हैव टू मॉनिटर द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है, तो रूटीन मॉनिटरिंग अलॉन्ग विद द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया आइदर थ्रू बिस और आइदर थ्रू एंट्रोपी।
नहीं, वो तो हम पैरालिसिस करेंगे ही नहीं, हम पैरालिसिस करेंगे। बिसाइड्स फॉर वेरी फ्यू ऑफ आवर पेशेंट्स विल डू द इन्वेजिव आर्टियल लाइन, तो जिसमें फॉर से इफ़ योर पेशेंट वुड बी रियली ओबीस, इफ़ देयर आर सम चांसेस के ब्लीडिंग होगी, सो अदरवाइज इट्स एज आई टोल्ड यू इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आर्टियल लाइन की ज़रूरत नहीं होती, एंड इफ इट्स रिक्वायर्ड इट्स फॉर द एनेस्थेटिस्ट, हम अपनी ईज के लिए रहते हैं, नॉट रिलेटेड टू द पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। तो यही मॉनिटरिंग है बस। इट्स अ बिग प्रॉब्लम, यू नो। सो मैंने तो आप लोगों को बताया ना, आप सब एनेस्थेटिस्ट, एक पेशेंट है जिससे आपको पूरा उठाना है, उसको एलए में डालें निकालें, व्हाट्स द पॉइंट इन डूइंग दैट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव टोल्ड यू कि जो पेनफुल एस्पेक्ट्स हैं दैट कैन ईजिली बी कवर्ड थ्रू योर स्केल ब्लॉक एंड अ बिट ऑफ सेडेशन। So those aspects can easily be covered through those kind of things. There is no need of providing general anesthesia. जो लोग करते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा अपना ओपिनियन है, these kind of things can easily be tackled through the scalp block and the sedation. No need of it, no need of it, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, no need. अगर कोई पेशेंट बहुत हाई रिस्क है तो आप दे दें, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं, आप तो सलाह नहीं दें। तो कॉमन इंटरऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है नोजिया। नोजिया उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है वेयर ट्यूमर लाइज समवेयर इन द वेंट्रिकल, ठीक है, और कोई इस तरह, तो उनमें नोजिया वॉमिटिंग ज़्यादा होता है। अदरवाइज इस स्ट्रेट फॉरवर्ड सुप्राटेंटोरियल ग्रायोमा। किसकी? नोजिया की? वो हम पेरी ऑपरेटिवली दे देते हैं, ऑन्डेनसिट्रॉन डेक्सामेथासोन एट द स्टार्ट ऑफ द सर्जरी। येस, विल डू दैट। चलें, और सब समझ आ गया? कोई सवाल नहीं है अवेक एनाटॉमी का? कुछ तो एक आध सवाल आना चाहिए, बनता है। ठीक है, चलें अवेक एनाटॉमी तो थोड़ा सा पढ़ लें। इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, स्केल ब्लॉक का मैंने आप लोगों को बता दिया। इंटरऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस यू विल नो कि क्या क्या हैं, तो दैट वुड कवर। मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा कोई आएगा, ठीक है ना। तो एक सवाल आया था, हमने अपने रेजिडेंट को बताया, उन्होंने कहा सर बिल्कुल ऐसे ही सवाल आया था कि आपने बना के दिया था। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने तो नहीं बनाया था। तो दैट वुड कवर मोस्ट ऑफ योर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। सो आई ट्राइड कि आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी पता चल जाए और थोड़े बहुत जो, बिकॉज टू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आपकी कोर नॉलेज साइड से भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो आई वुड ट्राई टू कवर दोज एस्पेक्ट्स। आई थिंक इंशाल्लाह आप लोगों का वो कवर हो जाएगा। पोस्टीरियर फोसा एनाटॉमी किस किसने कराई हुई है? कराई हुई आपने, कराई हुई, ठीक है। तो पोस्टीरियर फोसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का? द सेरिबेलम, ठीक है। तो पोस्टीरियर, ठीक है। टेंटोरियम प्लेट से नीचे, तो अगर हम एनाटॉमिकली डिवाइड करें तो टेंटोरियल प्लेट है, सुप्राटेंटोरियल, ठीक है। तो सुप्राटेंटोरियल की मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिकेशन क्या हो गई? सुप्राटेंटोरियल एनाटॉमी हो गई, और मैंने आपको अवेक एनाटॉमी बता दी। अभी हम आ गए इंफ्राटेंटोरियम में आ गए, ठीक है। टेंटोरियल प्लेट से नीचे आ गया। कौन से स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे? कुछ वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। पोस्टीरियर फोसा में वो पोस्टीरियर फोसा तो इटसेल्फ वो हो गया ना, आपका रेजिडेंशियल हो गया। उसमें है क्या क्या? उसके अंदर क्या क्या है? सेरिबेलम, ठीक है, पॉन्ज है, कार्डियो रिस्पिरेटरी सेंटर्स हैं हमारे, और कुछ हमारी क्रेनियल नर्व्स वहाँ से इमर्ज हो रही हैं, ऐसे ही है, ठीक हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब इसके ट्यूमर्स कैसे होते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे होती है इस ट्यूमर्स की, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इफ़ योर पेशेंट इज़ हैविंग सुप्राटेंटोरियल लीजन्स और इंफ्राटेंटोरियल, क्या सिम्टम्स होते हैं? पहले सुप्राटेंटोरियल के बताएं। सुप्रा का हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, अच्छा। और तो सुप्राटेंटोरियल का मतलब हुआ कोई भी लीजन होगा वुड लाई इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मिड ब्रेन, पिट्यूटरी, है ना, ऐसे ही होगा ना। तो वहाँ के सिम्टम्स क्या आपने कभी देखे, सुने होंगे, बड़े होंगे? नहीं, सुप्राटेंटोरियल की अभी मैं बात कर रहा हूँ। मोटर प्रॉब्लम आपने कहा ना, मैंने आपको वो सारे एलोक्वेंट कॉर्टेक्स दिखाए ना। मोटर प्रॉब्लम्स, स्पीच प्रॉब्लम, सेंसरी, ठीक है, और विजुअल प्रॉब्लम। सो दैट ऑल आर कॉल्ड मोटर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, ठीक है। तो आपके पेशेंट को कोई ना कोई मोटर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हो सकता है, इफ़ द लीजन वुड इंक्रीज इन साइज कैन कॉज प्रेशर सिम्टम्स, हाइड्रोसेफेलस, हेडेक, और साथ में सीजर हो सकते हैं। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स विच आर रिलेटेड टू द सुप्राटेंटोरियल लीजन, ठीक हो गया। और उसमें, और पिट्यूटरी को अलग कर लें। पिट्यूटरी में हार्मोनल हो गए, कशिंग है, एक्रोमेगैली है, हार्मोनल चेंजेस से थायराइड से रिलेटेड है, तो वो एक अलग सेपरेट एंटाइटी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अब इंफ्रा में क्या सिम्टम्स होंगे आपके? लीजन का बैलेंस, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, ठीक है, निस्टैग्मस हो गया, गेट प्रॉब्लम हो गया, क्रेनियल नर्व डिसफंक्शन हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस कैन ऑल्सो कॉज, सो रेज इन आईसीपी वुड कम लेटर ऑन, सो दैट कुड बी द ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग पेशेंट को सिम्टम्स हो, ठीक है। तो ट्यूमर्स कैसे क्लासीफाई होंगे? एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ट्यूमर, और जो रेफरेंस पॉइंट है इसका फोर्थ वेंट्रिकल है, हम देखते हैं कौन से होते हैं।
तो जो एंटीरियर आपके जो कंपार्टमेंट के ट्यूमर्स होते हैं दे आर प्रीटी बिनाइन इन कंपैरिजन टू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ट्यूमर्स. तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ट्यूमर इंट्राएक्सियल मीन्स इन द सेंट्रल लोकेशन, एक्स्ट्राएक्सियल मीन आउटसाइड द सेंट्रल लोकेशन. सो कौन कौन से हो सकते हैं? ग्लायोमाज हैं, अकाउस्टिक न्यूरोमा है, शेवेनोमा है, एपिडर्मोइड सिस्ट है. तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम these tumors are straight forward and their resection would be complete, बिल्कुल कंप्लीट रिसेक्ट हो जाएंगे. सो दैट वुड गिव यू एन आइडिया कि यार हमें ऐसे पेशेंट को हम करा रहे हैं कि जिसका ट्यूमर थोड़ा सा बिनाइन है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. क्यों इंपॉर्टेंट है विल सी इन द लेटर. ये वाले जो ट्यूमर्स हैं आपके जो कि आपके फोर्थ वेंट्रिकल से पीछे होंगे, सो एस्ट्रोसाइटोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, दे आर रियली एनाप्लास्टिक ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं. सो दैट वुड बी रियली एडहेरेंट, डिसेक्शन वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट. सो you'll be having a lot of trouble in terms of आपके कार्डियो रिस्पायरेटरी सेंटर्स हैं और रिफ्लेक्सेस हैं ओवर हेयर. और ये सारे ट्यूमर्स आपके जो होंगे इंट्रा एक्सियल होंगे. ठीक हो गया. तो जब भी when ever you'll start managing the case of posterior fossa craniotomy, things should come to your mind that either you are dealing with the anterior compartment or with the posterior compartment tumor. अच्छा, उसके अलावा जो हमारे पास तो एक तो सर्जरी के लिए आ जाएंगे. सो इट्स ऑल्सो वेरी रेयर इन आवर सेटअप, बट येस आई एम श्योर ये लॉट ऑफ केसेस वुड बी ओवर हेयर. आपके यहाँ बहुत ज़्यादा आते होंगे. क्रेनियो सर्वाइकल एबनॉर्मेलिटी के साथ बच्चे आएंगे तो उनको हम कहते हैं एर्नल क्यारी मेलफॉर्मेशन. उसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनेमलीज इन्वॉल्विंग ऑसिपेट, एटलस एंड सपोर्टिंग लिगामेंट्स दैट प्रिवेंट, जो हमारा ये बैक वाली साइड है जिसमें मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड एंड लोअर क्रेनियल नर्व. सो दैट कॉम्प्लिकेशंस आर क्वाइट कॉमन. तो पेशेंट एट देयर इन्फेंसी और क्या कहते हैं उसमें थोड़ा सा जो इधर आपके थोड़े बच्चे आ जाएं जिसको ये मेल फॉर्मेशन होगी. सो दैट वुड ऑल्सो कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर फोसा क्रेनियल सर्जरी. ठीक है. तो कॉमनली ट्यूमर्स होंगे. वेरी रेयरली दिस पेशेंट कैन कम अप विद टू यू फॉर हैविंग देयर सर्जरी रिलेटेड टू एर्नल क्यारी मेल फॉर्मेशन. साइन सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया. ऑब्स्ट्रक्टेड हाइड्रोसेफेलस, ICP के हो सकते हैं. कॉमनली गेट एबनॉर्मेलिटीज एंड क्रेनियल नर्व डिसफंक्शन. एनेस्थेटिक गोल क्या होगा आपका? थॉरो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट. ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ पेशेंट वी आर डीलिंग विद. सो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज पेशेंट्स वुड हैव एक्सट्रीम ऑफ एजेस. सो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज पेशेंट्स आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद नो नॉन कोमॉर्बिड. यंग पेशेंट्स होंगे बट एट टाइम्स एक्सट्रीम ऑफ एजेस वुड बी देयर. जैसे मैंने कहा आर्नल्ड क्यारी मेलफॉर्मेशन का, तो उसमें आपका बच्चा आ गया, इन्फेंट आ गया. सो एक्सट्रीम ऑफ एजेस यूजली बहुत मैटर करती हैं फॉर मैनेजिंग न्यूरोसर्जिकल केसेस. इट्स वेरी रेयर कि बहुत एल्डरली पेशेंट आए. तो मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एक्सट्रीम ऑफ एजेस इन टर्म्स ऑफ इन्फेंसी मैंने आपको बता दिया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी रिव्यूइंग क्या आपकी CT MRI की फाइंडिंग्स क्या हैं. आपने सर्जिकल टीम से डिस्कस किया दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ रिसेक्शन, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम वी आर एंटिसिपेटिंग. सो डिस्कशन विद द सर्जिकल टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पोस्ट ऑपरेटिव केयर नीड्स टू बी प्लान्ड. तो आपने करना क्या? इस पेशेंट को एक्सटूबेट करना है, स्पेशल केयर भेजना है, या आपने इस पेशेंट को यू हैव टू सेंड दिस पेशेंट टू द ICU. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ टू बी डिसाइडेड प्री ऑपरेटिवली, नॉट आफ्टर स्टार्टिंग द केस. सो इट शुड बी वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ योर प्लान. सो विल सी कि हम इनकी प्लानिंग कैसे करेंगे इन अपकमिंग स्लाइड. सो बिसाइड्स यू हैव टू प्रोवाइड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट पोजिशनिंग. पोजिशनिंग इनकी कैसी होती है पोस्टीरियर फोसा क्रेनियोटमीज की? कौन सी पोजिशन? Sitting, prone, park bench. So do you think these positions are really difficult positions in terms of managing them? So we'll see कि क्या होगा उसमें. ठीक है. So this is a very important concern for anesthetists. Besides, you have to provide them adequate brain relaxation, which is the goal of any sort of tumor surgery. Cerebral protection, which is the goal of any sort of cranial surgery. And management and prevention of complications, which we'll see कि क्या है. ठीक है. तो इंटरऑपरेटिव हमारा गोल हो गया. टेक केयर ऑफ डिस्टेंट एयरवे. सो ये एयरवे वुड बी रियली डिस्टेंट. ठीक है. क्यों डिस्टेंट है? हमने देख लिया कि ये पोजीशनिंग है, पार्क बेंच, प्रोन और सिटिंग पोजीशन. सो दिस पोजीशन इज नाउ आउटडेटेड. सो डोंट बॉदर अबाउट सिटिंग. कोई भी नहीं कर रहा अब कराची शहर में सिटिंग में, कुछ भी नहीं हो रहा. एक ज़माने में होती थी. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ टू बी अ प्रोन और पार्क बेंच. सो इट्स आउटडेटेड बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, which the commonest complication was venous air embolism. ठीक है. and lot of hemodynamic disturbances. So these two are the positioning. So you can see, so this is a park bench position, you can see. So lot of complications. Anesthetic needs to be anticipated, not only in terms of positioning, in terms of managing airway, in terms of preventing pressure points, dedicated IV access, dedicated arterial line access to get the adequate blood pressure monitoring. Brachial plexus injuries, lot of injuries. So neck injury, abdominal pressure. So both these kind of positions are really matter to an anesthetist, or in terms of all those things which I've told you. So सही हो गया. तो हमारा क्या था गोल? So you have to take care of distant airway. ठीक है. एयरवे डिस्टेंट है. बिसाइड्स पोजिशनिंग, नेक फ्लेक्शन होगी, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स. पोजिशनिंग हमने पढ़ ली. डेडिकेटेड सेंट्रल वेनस एक्सेस एंड इन्वेजिव आर्टियल एक्सेस शुड बी देयर. ठीक है ना.
तो इट्स देयर इज़ नो पॉइंट इफ यू नॉट टेक सेंट्रल, इफ नॉट वाई यू कांट टेक सेंट्रल लाइन इन इट. So you can't manage park bench positioning, prone positioning with the peripheral cannula and with the non-invasive blood pressure cuff. So you should have the provision of invasive lines for all these kind of cases. So there is no point. अगर आप स्टार्ट किया बहुत बुरे फंसेंगे, सही है ना. So your dedicated central venous and dedicated arterial access should be there. You have to provide them with the relaxed brain. अब relaxed brain और cerebral protection कैसे करती हैं? So you have to target your map should be really somewhere between 65 to 70, or cerebral perfusion pressure should be between 65 to 70, 55 to 65. ठीक है. Your MAC should be somewhere around 1 or less than 1, because beyond 1 MAC you will increase the cerebral vasodilatation and ICP बढ़ जाएगा. You have to keep your temperature between 35 to 36. You have to keep your end-tidal CO2 between 30 to 35 and hemoglobin of around 9 to 10. ठीक है. दीज आर द इंट्राऑपरेटिव हमारे जो गोल्स हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ट्यूमर सर्जरी या एनी सॉर्ट ऑफ क्रेनियल सर्जरी, एंड दैट इज द मेन रीजन ऑफ डूइंग दिस सेरेब्रल प्रोटेक्शन. कीप योर मैप मेंटेन्ड, कीप योर मैक समवेयर बिटवीन लेस देन 1.5, लेस देन 1, टेम्परेचर बिटवीन 35 to 36 and hemoglobin between 9 to 10. So, and all those things have got certain logical reasons which you can go into the detail, and these are the mainstay of managing any sort of patients having head injury also. ठीक है ना. तो जो भी एनेस्थेटिक्स आपके न्यूरो के हवाले से सवाल बोलेंगे आपके इंट्राऑपरेटिव गोल के, तो अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं भी बताई, ये 4-5 चीज़ें बता देंगी, तो दैट वुड कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स. ठीक है. टेम्परेचर, मैप, मैक और आपने हीमोग्लोबिन. ठीक है ना. ये आपके इंट्राऑपरेटिव एनेस्थेटिक्स गोल है. हाँ, हेड इंजरी में भी सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर या मैप आपने मेंटेन करना है बिटवीन 70 to 75, और तो ये भी आप समझेंगे इट्स ऑल्सो इंजरी, सॉर्ट ऑफ इंजरी, और उसमें भी आपने सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर 55 to 60 रखना है. ठीक है. और प्रिवेंशन एंड एंटिसिपेशन ऑफ वीनस एयर एम्बोलिज्म. सो हम इसको डिस्कस नहीं करते. वीनस एयर एम्बोलिज्म की मैनेजमेंट आप कहीं से भी पढ़ लिएगा, बट येस यू हैव टू बी रियली अलर्ट. सो इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट पोस्टीरियर फोसा क्रेनियोटमी, सो डोंट फॉरगेट दिस कॉम्प्लिकेशन एंड द मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ऑफ दिस वीनस एयर एम्बोलिज्म. ठीक है. पोजिशनिंग, वी हैव सीन द पोजिशनिंग एंड पोजिशनिंग रिलेटेड कंसर्न. सो एनेस्थीसिया टाइप मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स जर्नल एनेस्थीसिया. फॉर आपने पोजिशनिंग देख ली, यू कांट मैनेज दिस पेशेंट विद अवेक थिंग, यू कांट मैनेज दिस पेशेंट विद हैविंग LMA और एनी सॉर्ट ऑफ मैक टेक्निक. सो इट्स ऑलवेज जर्नल एनेस्थीसिया विद कंट्रोल मोड, इंट्यूबेशन एंड वेंटिलेशन. ठीक हो गया. इंट्यूबेशन में चॉइस ऑफ द ट्यूब आपने देखा, पेशेंट फ्लेक्स होगा, नेक मुड़ी हुई होगी, आगे पीछे होगी, सो वाइड रीइंफोर्स्ड ट्यूब शुड बी देयर. ठीक है ना. what would be the thing अगर आपने normal PVC यूज़ की, so the kinking of the tube would be there. So the best thing to have it, it's a reinforced tube. ठीक है. reinforced guide tube जो आती है, have you seen it? It's available over here. तो yes, it's, तो हमने एक पेशेंट देखा मेरे पास हो रहा था, तो वो ओवर में लिया, हमने शाम में कहते हैं वेंटिलेट नहीं हो रहा सर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है. अच्छा, हमने कहा ठीक है, हमने सारी चीज़ें देख ली. तो उसके बाद ना हमने जब उसको एक्सट्यूबेशन में सीधा किया, तो नेक पोजीशन प्रोन थी, दे हैव यूज द PVC ट्यूब. तो ट्यूब वॉज किंग्ड लाइक दिस. ठीक है ना. और नेक वाज लाइक दिस, और उसकी ट्यूब ऐसे किंग थी. तो नो, देयर इज नो पॉइंट. सो यू हैव टू बी रियली अलर्ट दैट you will be using a kind of tube for a kind of positioning, so that you not end up in having failure to ventilate your patient. Otherwise कोई भी प्रॉब्लम इस पोजीशनिंग में होती है, आप बताएं क्या करेंगे, है ना. शुरू हो गया प्रोसीजर बस, है ना. सर्जन सारा दिन ही बस आपको ना दवाएं देता रहेगा और आप, सही है. सो कंट्रोल मोड वेंटिलेशन, RTL लाइन. सो द पर्पस ऑफ डूइंग RTL लाइन, सो you'll anticipate, आपने वहाँ पढ़ लिया, आपके वहाँ कार्डियो रेस्पिरेटरी सेंटर है. सो बिसाइड्स हैविंग द डेडिकेटेड एक्सेस ओवर हेयर, सो यू हैव टू एंटिसिपेट हीमोडायनेमिक फ्लक्चुएशन. सो ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, एट टाइम्स द मैनिपुलेशन ऑन दोज काइंड ऑफ सेंटर्स इज अ कॉमन हैपनिंग इंट्राऑपरेटिवली. So for those kind of bradycardia, for those kind of hypertensive responses, you have to be really sure that what you are monitoring and what you are so how you are treating your patient and you are getting the response. So therefore those reasons RTL line is mandatory. Similarly, at time there would be a massive blood loss over there. तो क्लोज स्पेस है, लॉट ऑफ हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें से देयर हाई चांसेस ऑफ हैविंग एंड अप इन lot of bleeding. So if bleeding would be there, so definitely you are monitoring your patient accordingly. So CVP for managing and treating venous air embolism, which is a grave complication of the procedure. It's commonest with the sitting position. Now the rates are quite low with the prone and the park bench positioning, but yes, it's a common complication. So any procedure where the heart levels would lie below the surgical level, so the risk of venous air embolism would be there. So at times, because of these things, you have to start inotropes for which central venous line needs to be there, and बिकॉज ऑफ हैविंग द डेडिकेटेड IV एक्सेस. बहुत अच्छी IV भी है, 16 की लगी हुई, हाथ मुड़ गया, बंद हो गई, तो क्या फ़ायदा उसका. तो डेफिनेटली यू विल बी रिक्वायरिंग CVP फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स.
तो CVP is not good for resuscitation. It's good to have dedicated access. So for the resuscitation, you should have good working IV cannula. Am I right? Because CVP is not good for the resuscitation. You can't give a lot of fluid through it. But yes, it's good for the other reasons which I've mentioned over here. टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, इसमें जर्नल एनेस्थीसिया पढ़ लिया आपने, इंट्यूबेशन कर लिया, वेंटिलेशन कर ली. सो कुड बी आइदर इनहेलेशनल और टीवा, ये ऑप्शन हो गया. आपने इंट्यूबेट तो कर लिया. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स इनहेलेशनल. ठीक है ना, एज आई हैव टोल्ड यू. सो इन द बेस्ट इनहेलेशनल एजेंट फॉर न्यूरो एनेस्थीसिया इज आइसोफ्लोरिन, और उससे अच्छा कोई और है सीवोफ्लोरिन. तो सीवोफ्लोरिन वुड बी द बेस्ट फॉर ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. आपकी CMRO2 कम करेगा बट इट वुड कॉज लेस सेरेब्रल वेजोडाइलेटेशन इन कंपैरिजन टू आइसोफ्लोरिन. बट येस, द बेस्ट एजेंट्स वुड बी आइदर सीवोफ्लोरिन और आइसोफ्लोरिन. हेलोथिन, डेस्फ्लोरिन इज नॉट गुड. ठीक है. सो इनहेलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम अलॉन्ग विद whatever the analgesics availability is up to you, like fentanyl at the induction, morphine later on, or nalbuphine. It really depends on the provision and the availability. So at times you might need propofol for the TIVA. So TIVA का क्या मतलब हुआ? So you'll avoid this thing, ठीक है, and you'll avoid muscle relaxant. So tumors like acoustic neuroma, Shevonoma, where surgeon wants to monitor facial nerve. So for those kind of tumors, you have to be relying on mixed technique or TIVA techniques where you can avoid the muscle relaxant and inhalation. ठीक है. So you can also use dexmedetomidine. So dexmedetomidine का major benefit क्या है? So we all know the side effects of using inhalation in the neurosurgery. ऐसा है ना, क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या करता है? इम्पैक्ट ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट ऑन सेरेब्रल वेस्कुलेचर पे क्या क्या इम्पैक्ट है? पहले तो मुझे बताइए, ये गुड है बेड है? These are the good agent or bad agent for the neurosurgery? Not good, not bad in my opinion, in between. ठीक है. अब not good क्यों नहीं? Why they are not good? Why? एक वन क्या करता है? ठीक है, सेरेब्रल वेजोडाइलेटेशन का. फिर हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? ICP को क्या करेगा? रेस करेगा. तो हम यूज़ क्यों करते हैं फिर? ठीक है. सो ऑन द अदर साइड दे आर रिड्यूसिंग CMRO2. And so how we are overcoming on the harmful effects? So we know the harmful effect is cerebral vasodilatation, and they can rise the ICP by increasing the blood flow, and the effects are huge if you use halothane, which is outdated. The effects would be much larger if you use desflorin, but they are very minimal if you use isoflorin and the sevoflorin, है ना. तो अब हम इनको ओवरकम कैसे करते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सुनो. तो हम क्या करते हैं? हम इसको staying within a MEC and will do a bit of hyperventilation, which is 30 to 35 millimeter of mercury. ऐसा हो गया ना. तो that's how we are going to overcome on those kind of side effects. ठीक है. and make it more beneficial for the patient. और इसकी important वजह ये the cost benefit. So it's readily available, it's used in all the anesthetic setups, and the cost is really low in comparison to the agents like propofol. ठीक है. बट बाय एडिंग डेक्समेटोमिडिन, ठीक है, तो ये मेरी बहुत आजकल फेवरेट रेजीम है. सो यू विल गेट इनहेलेशनल स्पेयरिंग इफेक्ट. ओके, सो जस्ट ऐड अ बिट ऑफ डेक्समेटोमिडिन. तो हम जैसे कहते थे ना मल्टी मोडल एनाल्जेसिया, सो मल्टी मोडल एनाल्जेसिक एनेस्थीसिया रेजीम भी है. सो इफ़ यू ऐड डेक्समेटोमिडिन एट समवेयर अराउंड 0.1 माइक्स पर kg पर आवर, तो एक वाइल पूरी सर्जरी में चल जाएगा आराम से. सही है. इनहेलेशनल को आपने रखा 0.8 0.7 तक. सो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ बोथ ऑफ दीज एजेंट्स. So you will cut off your inhalation. If you will cut off your inhalation, your recovery profile would be wonderful. Besides, by adding dexmedetomidine, you will provide quality analgesia. Dexmedetomidine has got lot of other benefits in terms of reducing post-operative cognitive dysfunction, disorientation, which are quite helpful for your neurosurgical patient. वो भी अच्छी हो जाएगी, आपकी सारी चीज़ें अच्छी कर देगी. अवेयरनेस के लिए विल मॉनिटर विद द बेस. तो अवेयरनेस क्यों होगी? तो यू आर गिविंग अ बिट ऑफ इनहेलेशन 0.7 पॉइंट मैक मेजर कर रहे हैं, तो इनहेलेशन स्पेयरिंग इफेक्ट ले रहे हैं, तो 0.7 ऑफ मैक एंड 0.1 ऑफ दिस थिंग. सो इफ अगर आपके पास बिस नहीं भी है, यू कैन मॉनिटर योर पेशेंट, नो प्रॉब्लम इन दैट. येस, इफ यू टोटली अवॉइड इनहेलेशनल and if you use purely TIVA technique, so definitely in that case you should have the provision of depth of anesthesia monitoring, either with the BIS or either with the entropy. So we'll use, so I'll use BIS for every of my patient most of the time, unless के वो मैं application ना कर सकूँ, which is unusual for the posterior fossa, but I'll prefer to use BIS monitoring for my patients. ठीक हो गया. So we'll give anti-seizure prophylaxis for all of our patients. Most of the time it works for the supratentorial thing. So usually seizure are not quite common with the posterior fossa thing. तो seizure common है supratentorial surgery में, जिसमें हम लैरेज देते हैं.
एंटी एमेटिक प्रोफिलैक्सिस इट्स इंडिकेटेड एंड इट्स लिटरेचर प्रूवन कि आपने दोनों को डेक्सामेथासोन आपने हर न्यूरो सर्जरी में आपने एंटी एमेटिक प्रोफिलैक्सिस देना है विद बोथ ऑफ दीज एजेंट्स डेक्सामेथासोन एंड ऑनडानसेट्रॉन एंड इसकी एफिकेसी इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड. And So- if you don't have on that, So if you don't have, you can rely on the dexamethasone. Better to give it. There is no role of Maxilon. Maxilon would increase the chances of extrapyramidal symptoms, and it's not good for patients having seizure. But the efficacy of both of these agents is really proven. So you should be opting these things, this regime for every of your neurosurgical patients or any patient in which you are thinking that you'll end up in having post-operative nausea, vomiting. Choices of fluid for all neurosurgical patients is your normal saline. We know the reason. So it's very important that I've told you that you have to plan your post-operative care. So most of these patients end up in having either special care stay, many of them needs ICU stay, and very few of them extubated straight away to the recovery and the wards. ऐसे ही है ना, ऐसे. So arrangement of post-operative ventilator really depend on how complex the lesion is. So you'll know the complexity about understanding of the basic anatomy. हमने देख लिया anterior tumor, posterior tumor. Besides reviewing the MRI findings and discussion with your neurosurgical team. ठीक है. Duration of the procedure क्या होगा? तो usually इसका the duration of the procedure is somewhere between 4 to 5 hours for normal surgical resection. Complex ही तो बात ही अभी छोड़ दें आप, ठीक है. Experience of the surgeon is also very important here. ठीक है ना. तो हाउ योर सर्जन इज, सो इफ़ यू आर डीलिंग विद रियली स्लो सर्जन तो प्लीज़ अरेंज द पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेटर. इफ़ यू आर डीलिंग विद वेरी ब्लंट सर्जन प्लीज़ अरेंज द पोस्ट ऑफ वेंटिलेटर. यू शुड बी नोइंग के वट सॉर्ट ऑफ सर्जन यू आर वर्किंग विद, ठीक है ना. सो इट रियली डिपेंड्स. इंटरऑपरेटिव ब्लीडिंग हो गई, सो यू एंड अप इन कॉम्प्लिकेशन, ट्रांसफ्यूजन, डेफिनेटली दोज पेशेंट वुड नीड पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेशन. सिमिलरली नहीं, so over here complexity would tell you if the tumor would be complex it means the resection would be massive, it means the chances of bleeding would be higher. ठीक है. और अगर इंटरऑपरेटिव हो गई, इंटरऑपरेटिव तो देखो हमारे किसी भी पेशेंट में कोई एडवर्ट इवेंट हो जाए वी नीड पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेटर. सो दैट्स लाइक. बट येस, इफ द ट्यूमर इज कॉम्प्लेक्स, इट्स लोकेशन इज कॉम्प्लेक्स, यू हैव डिस्कस विद द सर्जन, ही विल से ओ आई विल टेक सम टाइम, सो यू हैव टू अरेंज द वेंटिलेटर. सिमिलरली there are certain cranial nerve dysfunction, cuff and gag problems would be there, so you have to anticipate that you can't safely extubate these patients. Intraoperative hypothermia, so if you are anticipating that your patient would be really hypothermic, which is the usual case for pediatric patient, so you will arrange post-operative ventilator. Last but not the least, so most of these patients having park bench positioning and especially the prone positioning would end up in having airway edema. So you have to anticipate, and airway edema is again it's quite common for the pediatric patients. It's though it's common for the adult, but it's really common for those patients having those infants or pediatric patients requiring posterior fossa. So for all pediatric patients, definitely in my opinion we have to arrange post-op ventilator. ठीक है. तो airway edema बहुत serious complications है. So we have got lot of cases where they have extubated and end up in having non-securing of airway cardiac arrest because of the airway edema they didn't put the tube in, can't put the tube in. So airway edema is a grave complication. You have to anticipate, you have to be alert in terms of having this complication post-operatively and have to deal accordingly. So for pediatric patients, definitely you have to arrange post-op ventilation requiring posterior fossa surgery. So airway edema, tongue edema, ये हमारी मैंने बता दी. These are also the common post-operative complications like airway edema, tongue edema, cranial nerve dysfunction. so doctor, airway edema will be there regardless, right? Matlab always. All. Because of the positioning. So because of the positioning, because of the extreme of ages, because of your fluid resuscitation, so in pediatric patients it's almost always there. So the way out is the duration of the surgery. If the duration of the surgery would be like 3 to 4 hours, you have to supine your patient and just do the check laryngoscopy. ठीक है. So most of the time you'll find it. So कैसे check करेंगे? You'll do the check laryngoscopy. You have see whether you can differentiate between epiglottis and the glottis area, whether it's edematous or not, and the best way is to just deflate the tube, the cuff, and see the leak is there or not. And leak test. So either if you don't have the provision of video laryngoscope, you can do it with your normal laryngoscope. If you don't, and just see if leak is there or not. If leak would not be there, which is the usual thing, don't extubate your patient. If you take the tube out, you will end up in having airway obstruction and you can't put the tube again. It would not be the straightforward procedure. The anatomy would be really distorted. ठीक है ना. तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने हर मरीज़ को अगर उठाने का प्लान बन गया आपका, so just do the check laryngoscopy and see the airway anatomy. With the provision of McGrath and video laryngoscope, you can have the visualization and anyone can look into it. Pneumocephalus again is the complication. Usually if your patient is again coming up for the redo kind of procedure जैसे कल procedure हुआ, so pneumocephalus is the residual thing. So you have to be really careful about those patients who are coming up to you having
for some sort of not from the primary surgery but for the secondary surgery immediately for any sort of bleeding problem और किसी ऐसी प्रॉब्लम से आ रहे तो pneumocephalus would be the problem. सो की टू सक्सेसफुल एक्सट्यूबेशन क्या होगी इनकी? प्लान्ड केयर हो गई, बैलेंस एनेस्थीसिया जिसमें मैंने आपको बता दिया, इनहेलेशन स्पेयरिंग इफेक्ट बता दिया थ्रू द डेक्समेटोमेट्री, इंट्राऑपरेटिव सेरेब्रल प्रोटेक्शन, द गोल विच हैव टोल्ड यू, experience of the surgeon, duration, blood loss, reversal of the paralysis needs to be objective, and you have to monitor it through your neuromuscular twitch. Patient's cuff or gag adequate होना चाहिए, and airway needs to be patent, there should be no airway edema. So that is the key to successful extubation. Thank you. So that was all about posterior fossa craniotomy. question तो पूछने पड़ेंगे वरना मज़ा नहीं आएगा. So we'll prefer not to have in pediatric patients. हमारे तो besides any adult more than 17, 16, so should be fine. So regarding elderly, it's quite possible. Again, it depends upon the understanding, willingness of the patient side. ठीक है ना? तो extreme limit नहीं है, but yes for the pediatric patient, though it's लोग दुनिया में कर रहे हैं, but for our setup, so we'll prefer to have adult patients, not the pediatric one. So it usually lasts throughout the perioperative period I have told you. So 6-7 hours would not cause matter anything. So it would last throughout the perioperative period. So the maximum time which we have observed, it's around 7 to 8 hours. 7 hours की भी सर्जरी हुई है हमारी with the MEG thing. तो आप लोग सब सिविल हॉस्पिटल के ट्रेनिंग है सारे, बाहर से कोई ट्रेनिंग नहीं है. ओके आप लोग कहाँ से? ट्रॉमा सेंटर सिविल हॉस्पिटल. ओके तो मुझे कोई भी आप में से ईमेल अपना भेज दे आपको, तो मैं आप लोगों को अपनी मेरी गूगल ड्राइव का लिंक है. सो इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ आर्टिकल्स रिलेटेड टू न्यूरो एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल्स, सो दैट वुड हेल्प यू अलॉट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम प्रिपरेशन अदरवाइज. सो तो यूजली मेरा टारगेट लोगों को एग्जाम के लिए तैयार करना नहीं होता, लोगों को अच्छा फिजिशियन बनाने के लिए मेरा टारगेट होता है. सो दैट वुड हेल्प यू अलॉट इन टर्म्स ऑफ गोइंग थ्रू दैट थिंग्स. तो उसमें कुछ रिसेंट लिटरेचर है, आर्टिकल्स है, सो जस्ट गो थ्रू दैट गूगल लिंक. तो वो मैं अपने ट्रेनिंग्स को भी अक्सर देता हूँ, जो भी मेरे पास न्यूरो एनेस्थीसिया का आता है तो मैं वो दैट लिंक वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल. आप इतना ईमेल भेजिएगा मुझे, ठीक है, अभी दे दिएगा. सो आई विल सेंड इट टू यू. ठीक है, सो थैंक यू. सही है.